उनके रिजर्व्स में तो देने से रहे। बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी प्लान उन्होंने बताया, देयर विल बी मेनी मेट्रोज, राइट? मेट्रो प्रोजेक्ट्स, डू यू गाइस नो अबाउट मेट्रो प्रोजेक्ट्स? कुछ 23 सिटीज में मेट्रोज रन होंगे। इवन नासिक, नासिक was not given metro, but during this budget they have allocated money for Nasik metro, and they are planning to develop this triangle. This specially it was specially mentioned by the honorable Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman. She said that we are planning to develop that triangle. And which triangle she spoke about? It was Mumbai, Pune, and Nasik. So Mumbai and Pune are both getting metros, but Nasik was not getting metro, and now they would be more happy because Nasik will also get its metro. And if you see in Mumbai, so Mumbai, from where I stay in Borivali. वहां से मानपुर, मानपुर इज अ प्लेस इन सेंट्रल मुंबई, वहां तक मेट्रो का लाइन खींचा जाने वाला है, और मानपुर से दूसरा एरिया से वहां से वो मेट्रो खींचा जाएंगे। So there are total 9 metro lines which are going to be completed in Mumbai. So this government, in terms of roads and metro, they are doing very, very, very good if you compare them from past government works. सो अगर हम ये भी देखें अपना रोडवेज, सो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इज कमिंग अप ऑन 2023। इट वुड गेट कंप्लीटेड 2022 ही डेडलाइन डेट है उसका। और दिस में आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस महाराष्ट्र डे और गुड़ी पाड़वा, they will be starting the road from Nagpur to Igatpuri. So normally it takes around 16 hours to reach Nagpur from Mumbai. Okay, that will be cut down to almost half. मतलब 8 घंटे में आप नागपुर पहुंच सकते हो. It is around 700 kilometers. So imagine the speed of car. It would be around 100 to 110, 120. So this is a good thing which is coming up. Then Mumbai Delhi new expressway is coming up. So normally Mumbai Delhi को 24 घंटे लगते हैं, but it will be now cut down to 12 to 13 hours. So the roadways which they are building is very good. Mumbai to Kanyakumari is also, there is one more project coming up. मुंबई पुणे में भी एक और एक्सप्रेसवे आ रहा है, जो ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे था। हैव यू एवर गाइस ट्रैवल टू एन एक्सप्रेसवे? अपना लोनावला तो गए होंगे, तो वो जो एक्सप्रेसवे है, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेसवे बिल्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड earlier when you used to go to Pune, it used to take like 5 hours, 6 hours, but Anytime, sir. because of that expressway, the express down to 3.5 to 4 hours. I am counting the traffic also. Otherwise, it is 3.5 hours. So these are some things which grow, which are very good for the human population. So this is very much connected to our geography ka topic, which we'll cover today. So last lecture we had started about population and its composition and all. So I'll be completing this today. Okay. Let's begin. सर Yeah, Uday. सर आपने जो जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट बोला ना, वो जो जगह ना मानक्रूड है ना, मानक्रूड। हाँ हाँ। ओके ओके देन कैसा है? आई वाज कंफ्यूजिंग है मानक्रूड है मानक्रूड है, कैसे कंफ्यूज है मेरा। Okay. What you thought? क्या मान लगा? मानटूर से था, मानटूर ऐसा ऐसा एक थॉट हो गया था। मानटूर के बदले मानटूर कुछ साउंड आया था, आई मीन ऐसा एक वर्ड आया था। ओके। मानकुर घनसोली करके एरिया है, किसी को पता है? घनसोली। इट्स सेंट्रल मुंबई लाइन ना? यहाँ सेंट्रल मुंबई। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया है वो। इवन अपना गोडाउन भी, मतलब अपना डंपिंग ग्राउंड वहीं पे है, तो वहाँ का एरिया सबसे पोल्यूटेड माना जाता है। फैक्ट्री भी है उधर, फैक्ट्री भी हाँ, बहुत सारे फैक्ट्रीज भी है। ओके सो सर।
this every time there is a city planning coming up ना, what they do is, तो जब भी कोई city develop होती है, for example मुंबई जब develop हुई, तो what they do to the factories, they shift to another area. So बहुत सारे अपने जो मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल्स थे, फूड ग्रेन वाला मिल्स थे, वो दैट वर ऑल शिफ्टेड टू भिवंडी और सूरत और मानकुर wala area or Chembur wala area. So this is the thing which they have to do. So this is also a part of geography only. So whenever there is a city development coming up, या सिटी को और डेवलप करना है, इसको सिर्फ रेसिडेंशियल और 3 टायर सिटी बना रहे हैं, या टर्शरी सिटी जैसे बोल सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऑफिसेस ही होंगे. So you will not see many factories in Mumbai, especially in Mumbai city, जो अपना दादर से लेकर मुंबई चर्च गेट तक वाला एरिया है. You will never see factories over there. हाँ, पुराने मिल्स तुमको बंद पड़े हुए दिखेंगे. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. I present it now. Wait. Can you see my screen? Yes. Yes, sir. Okay. Sir. So we'll continue with this chapter. As I had said in the last lecture, ये बाकी था अपना थोड़ा वाला. Did I close anything? You guys can still see my screen, right? Yes, sir. Yes. Okay. There was one notification which I closed. Of Google Meet. I'm not that tech savvy. I am very poor in this. Okay, so we had studied patterns and distribution and about the density of the population. In this lecture, we'll be covering the growth and composition of India's population. What constitutes the population of India? Okay, so as we had done in the last lecture, the density of population, it is like just giving a recap of that. Number of people upon the land area is called density of population. So you would see that Mumbai ka density is very high. Almost Delhi ka density is also very high. So these cities have a huge population. This was about the top 10 populated states by density wise. Okay, so talking about the growth of the population. So whenever we talk about growth, so what does growth exactly mean? So growth is nothing but कल के पॉपुलेशन का और आज के पॉपुलेशन का जो भी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन टुडे इनटू 100 विल गिव यू ग्रोथ. मतलब कल अगर 100 लोग थे और आज 120 है, राइट? तो डिवाइड दैट बाय 120. हाँ, P1 आई गेस. हाँ, P2 minus P1. So there is a formula for this growth wala thing. So G is equal to P2 minus P1 upon P1. So P1 is the population of the base year. Now what is base year? जो कोई भी साल के साथ हमें compare करना है, that is called P1, population of the base year. That can be of 2020. For example, if we are counting about 2011 wala thing. And P2 is the population of present year. So P2 का अगर population is 120 and P1 का was 100, divide by 100. So what will be the difference? P2 minus P1 will give you 20
divided by P1, that is 100, into 100. 100 cancel, it will be 20%. Did you get that? Population, how it works? It is very Yes, easy. sir. So this will give you the growth rate of the population of India. So हर बार, और ये बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, it is a universal formula for using the growth rate. So growth of a population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. मतलब कल क्या population था और आज क्या population है, उसका जो difference है, उससे अपने को growth पता चलती है. And we all very well know the growth of population of India has always been positive since years. एक ही साल ऐसा था, एक ही decade ऐसा था जो population कम हुआ था. I'll ask you that if anyone can answer. After that, wait, I will complete this slide and we'll go when was that time. Okay, so the population growth has two components basically. मतलब in इस चैप्टर में हम सिर्फ नेचुरल वाला ही देखेंगे. So what do you mean by natural growth? Natural population growth, it is just a crude birth and death rate. Crude मतलब natural birth और birth rate और death rate का जो रेशियो होता है, कितने बर्थ्स है पर ईयर और कितने डेथ्स हुए हैं, उससे उससे भी कम टू नो द पॉपुलेशन ग्रोथ. सो नॉर्मली क्या मतलब हर बार ही कि जब 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 बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट डिक्रीज होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, राइट? तो डेथ रेट इज गोइंग हाई एंड द बर्थ रेट इज गोइंग अप, सो दिस विल गिव यू अ गुड राइज इन पॉपुलेशन. ये क्यों होता है, कैसा होता है, विल कम टू दैट. बाद में आता है इंड्यूस्ड. सो पॉपुलेशन ग्रोथ का टू कंपोनेंट्स था, उसमें से एक था नेचुरल, दूसरा है इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड में व्हेन द वॉल्यूम it is the volume of inward and outward movement. So this talks about the migration thing. So death rate and birth rate is natural, but what about migration? Migration तो natural नहीं होता है, तो migration भी एक factor है, but we will not cover this now in this chapter. There is another different chapter altogether for this. So this is induced, which talks about migration. Then the annual growth rate of India's population was 1.64% in 2011. मतलब हम कितने बढ़े हैं 2% से. So imagine 2% of 1,20,000 crores, 1.2 lakh crores, right? What is our probable population? 120 crores. So 120 crores का 1.2%, 1.5%. Okay, so this is the growth rate of our year 2011. So I asked you, can anyone tell me कभी नेगेटिव था? मतलब कब ऐसा टाइम हुआ रहेगा जब अपना ग्रोथ माइनस में गया? एनीवन? मतलब कौन सा ईयर, किसी को पढ़ा है किसी ने कभी गलती से? 1921. अभी देख के बोला या ऐसे ही बोल रहे हो, पक्का बोल रहे हो? नो सर, पढ़ा था. क्यों हुआ था? एनीवन? क्यों 1921? यू आर करेक्ट. सोचो क्या हुआ था ऐसा 1921 में? वर्ल्ड वॉर का टाइम था क्या? वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? बोलो. सर पेंडेमिक था क्या? राइट, कमिंग क्लोजर. वर्ल्ड वॉर वाला भी करेक्ट है, पैंडेमिक याद करो 1920, और कितना न्यूज में था ये चीज. 100 साल में एक पैंडेमिक आती है, याद है ना? तभी सार्स करके एक ये था, सार्स. यस. हाँ, राइट. Just give me a second now. So 1920. So first World War took place in 1914, I guess. 1914 और खत्म हुआ 1919 में. Okay? तो ये 4 साल वॉर चला, उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी थी.
उसके बाद 1920 में there was a pandemic which hit, but if you see the growth, it was as in इतना भी बुरा नहीं था अपना, सिर्फ वही ईयर का पॉपुलेशन अपना माइनस में गया. And it is very much as in when I read in this book, I came to know that it is very much impressive because ये तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वाला टाइम था, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रेकआउट हुआ, जब हम फेजेस पढ़ेंगे यू विल कम टू नो अबाउट दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो since 1901 or 1911, 1921, 1931, you can see the growth of percentage is going on increasing. Okay, 21 से 24 ऐसा क्या हो रहा था इन सालों में कि ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, राइट? यू शुड एनालाइज कि ऐसा क्या हो रहा रहेगा. एनालाइज एज इन यू नीड टू डेसिफर कि अच्छा ये हुआ इसीलिए ये हुआ. सो दिस मेक्स योर ब्रेन वर्क. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 1961 और 1971 वाला पार्ट देख रहे हो तो द पॉपुलेशन परसेंटेज वाज द हाईएस्ट, 24.80. दिख रहा है ये वाला पार्ट 1961 और 1971. तो ये वही टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. 1962 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया था, एंड दैट इज द टाइम व्हेन पॉपुलेशन हैज ग्रोन. सो यू कैन डायरेक्टली टर्म as in the growth of the population with the growth in economy. अगर इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है. That doesn't mean कि बस लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं. It talks about the standard of life. The standard of life has improved. The standard of living has improved. So what helps is medical facilities बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से डेथ रेट कम हो जाती है. बहुत सारा इंडिया में तभी पहले ये 1920s वाला जो पार्ट था, बहुत सारे इंडिया में यू में नो, जब हिस्ट्री पढ़ रहा, जो भी हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा है, दे विल टेल यू दैट बहुत सारे टाइम में अपने को फेमाइन फेस करने पड़े थे. बहुत सारे एरियाज में बंगाल का फेमाइन हुआ था जो 1940s में हुआ था. बहुत सारे जगहों पर पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा हुआ था. बहुत सारे अपने पुणे में भी जो पैंडेमिक स्प्रेड हुए थे, एपिडेमिक हो रहे थे, ब्रेकआउट हुए थे. तो बहुत सारा उनके वजह से अपना पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे जा रहा था. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच यू शुड सी व्हेन यू सी दिस टेबल. सिर्फ टेबल देख के अपने को कुछ ये नहीं करना है, बट ये टेबल देख के अपने को समझना है कि ये क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इतना क्यों बढ़ रहा है, राइट? सर इसमें भी हुआ था राइट्स 1921 में राइट्स भी हुआ था. 1921 में राइट्स कौन से वाले? 1921 में राइट्स हुआ था. मॉपला कुछ बोलते हैं, मॉपला राइट्स. अच्छा, हाँ, मॉपला रिबेलियन जो हुआ था. हाँ सर. राइट. तो these are all Uday, sorry. Okay. Can No, I said sorry. Yeah, you say. सर दैट्स वो ना क्या जो पॉपुलेशन है जिससे ना पूरा कम हो चुका है. जितने लोग मरे ना वो पूरा लाखों लोग मरे थे मॉपला राइट्स में 1921 में हुआ. आई मीन इसमें मॉपला कहाँ पे, मतलब मलाबार में होता है. मलाबार में केरला में हुआ था ये मॉपला रिबेलियन. बहुत बड़ा रिबेलियन था वो. और उसके बाद एक और केस है 1921 जून 28 पे कांग्रेस बाइकआउट किया प्रिंस ऑफ वेल्स. ओके, वेल्स. हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स, वो भी इसको बाइकआउट किया बोल रहे थे. 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बाद में 1919 13 अप्रैल बैसाखी डे अपना ये भी हुआ था, जालियांवाला बाग. सो ऑल दीज इवेंट्स अपने को बाद में बहुत सारे राइट्स, बाद में बहुत. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन. बहुत सारे लोगों को इंग्लैंड लेके गए थे वॉर फाइट करने के लिए. हाँ सर. ओके, तो दीज आर ऑल फैक्टर्स. बिकॉज वो तो ठीक है, चलो वॉर और लोग लेके जा रहे ठीक है, बट उस सबसे इम्पोर्टेंट और खराब चीज क्या थी पता है? जो अपने फूड ग्रेन्स जो स्टोर होते थे ना इंडियन लोगों के लिए, वो सारे लेके जाते थे वहां पे वॉर के टाइम पे. हाँ, तो अपना वो शॉर्टेज हो जाता था. So you can see the number has listed absolute number. It is 7,72,117 number. तो एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से हाँ सर.
हाँ, तो ये नंबर, सो यू कैन इमेजिन कि ये इतना कम हुआ था. सो ऐसे ही अपने को बाकी सब पॉपुलेशन का वाला भी एनालाइज करना है कि क्यों बढ़ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है. ओके, ओके सर. सो these आर द स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, ग्रोथ ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा था. सो ये ईयर 2001 और 2011 की बात है. सो यू कैन सी द डार्क शेडेड एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई था. और यहाँ पे जो लाइट शेडेड, मोस्टली द सदर्न स्टेट्स, केरला है, आंध्रा है, ओडिया है, गोवा है. सो दीज स्टेट्स वर वेरी लेस पॉपुलेटेड, एज इन द ग्रोथ रेट वाज कंट्रोल्ड. तो these states had done, अगर आपको याद रहेगा 1980s में समथिंग 83 या 82 में, when Congress government had bought that aggressive scheme of हम दो हमारे दो. So it was very much rigorously implemented all over India and population was controlled during that period. Because वो वाला पार्ट को, मतलब phases जो अगला स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, कि वो वाला पार्ट को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है. एंड द पॉपुलेशन वाज गोइंग सो मच, सो इंक्रीजिंग सो मच एक्सॉर्बिटेंटली, कि वो उस पर कंट्रोल लाना गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ा. और तब से अपने पास वो स्कीम आया हम दो हमारे दो वाला. एंड दीज सदर्न स्टेट्स, by being abiding by the rules of the government, they followed it very well. Whereas बहुत सारे ज्यादा स्टेट्स जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, they didn't follow this. उसके वजह से क्या होता है कि जब अगर ऐसा ही पॉलिसी फॉलो नहीं होता है, तो जो सदर्न स्टेट्स है उनका जो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो कम हो गया. एंड दीज स्टेट्स who actually followed the law of the government got a less representation of themselves in the parliament. और अपने इधर रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, एरिया के बेसिस पे नहीं होता. और आज भी, अभी भी, सो वो एरिया के बेसिस पर नहीं होता और पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर होता है. इसीलिए यूपी एंड बिहार, ओके, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. एंड दैट इज व्हाई एवरी टाइम आई से, जो भी यूपी पर रूल करता है वो पूरे इंडिया पे रूल करता है. ऐसा एक थियोरी है, बहुत लोग मानते हैं जैसे. दैट इज व्हाई अगर यूपी में हार रहा है कांग्रेस, तो इसका मतलब कांग्रेस पूरे इंडिया में हारेगा ही. अगर यूपी में बीजेपी हार रहा है, तो इसका बहुत चांसेस है कि बीजेपी विल बी वॉश्ड आउट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स. और बिकॉज यूपी हैज मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां का सीट्स ऑफ पार्लियामेंट में बढ़ जाते हैं. ओके, सो ये कितना आयरनिक है. मतलब जो स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं रूल्स ठीक से, उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, और जो स्टेट्स रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिल रहा है. ओके, स्टिल इतना सब होने के बाद भी द सदर्न स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड देन द नॉर्दर्न स्टेट्स. ओके, so there are 4 phases of population growth. One is from 1901 to 1921. So this is called the stagnant or stationary phase. मतलब यहाँ पे अपना ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट था, ना बढ़ा ना कम हुआ. ओके, इसका मतलब इसका बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था. मतलब लोग जिंदा, मतलब बॉर्न भी हो रहे थे और मर भी रहे थे. दैट इज व्हाई दिस वाज स्टैग्नेंट फेज, स्टेशनरी फेज. और यू वुड सी दैट सबसे ज्यादा आंदोलन एंड ऑल द एक्टिव पॉलिटिक्स of Indian freedom struggle was between this part only. बहुत सारा ब्रिटिश का रूल, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, everything this and the Great Depression. Nobody spoke about this. 1921 was the year of Great Depression. मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था. So what do you mean by depression? It is the young elder brother of recession. तो recession बुरी चीज होती है, राइट? मंदी से भी बुरा होता है डिप्रेशन. मतलब वो बहुत बेकार होता है. मतलब प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है. सो प्राइस राइज कैन बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन, बट व्हेन दैट इन्फ्लेशन रीचेस टू एन सर्टेन हाइट, तो उसको बोला जाता है डिप्रेशन. और उसके वजह से इट क्रिएट्स अ विशियस साइकिल. तो प्राइसेस बिकम हाई, लेस एम्प्लॉयमेंट, देन लेस एम्प्लॉयमेंट, making the goods less
less popular to buy, and that is why again creating more unemployment, because अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं कुछ तो लोगों का जॉब का जरूरत नहीं है तो और अनएम्प्लॉयमेंट. सो इट इज अ विशियस साइकिल, वो बढ़ता ही जाता है. ये कभी इकोनॉमिक्स का पढ़ाने को मिला तो आई टीच यू इन गुड ये more detail. So this time 1921 was a time of Great Depression. पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का ग्रोथ का अगर देखा जाए तो नेगेटिव साइड पूरे वर्ल्ड ने देखा, सिर्फ इंडिया ने ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये हुआ था. यू वुड सी फोटोज इमेजेस, अगर कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो पुराना वाला, सो यू विल से दे पोर्ट्रे दिस, मतलब हमेशा कि 1921 में जैसा हुआ था वो सार्स का तो था ही. Okay, so this was the time when world faced depression, and that is why the population was stagnant over in this period. Then 1921 से लेकर 1951 तक, it is called the steady population growth. मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1921 से 1951, this was the time when till 1930s, like 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट ऐसा हो ही गया था, इंडिया को पता चल ही गया था कि आज नहीं तो कल अपने को अभी आजादी मिलेगी. इट टुक मोर 17 years, बट तभी डिक्लेयर हो चुका था 1929 31 दिसंबर कि अपने को आजादी तो मिलने वाली है. सो दिस वाज द टाइम. एंड 1935 में इंडियन रूल्स और लॉज बनाने के लिए बहुत सारा पॉपुलेशन, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने रूल बनाना चालू किया. You guys know or don't know, I don't know about this, but जो भी 1935 में रूल फॉर्मुलेट हुए हैं, that constitutes majority of the rules are still there in the constitution of India. तो जो 1935 में जो रूल्स बने हैं वही बहुत सारे कंटिन्यूड है अभी भी, जो that are a part of the Indian constitution. Okay, so this was the part when India was clear that we are going to get independence from British. And 1951, so यहाँ पे अच्छी तरह से steady growth हुई थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ रहे थे, रेलवेज वगैरह अच्छे खासे और डेवलप हुए थे. सो बर्थ रेट रिमेन्ड हाई एंड मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड. सो बिकॉज ऑफ दिस अपना ग्रोथ का पार्ट चालू हो गया. देन कमिंग टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1951 से लेकर 1981 तक, प्लानिंग कमीशन आते गए, नए नए स्कीम्स लाते गए, नए नए स्कीम्स के साथ नए नए बिजनेसेस, नए नए अगर 12-year प्लान के बारे में पढ़ो, 5-year प्लान के बारे में पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि हर 5 साल हमने अलग अलग सेक्टर को दिए हैं. मेजॉरिटी मतलब जो स्टार्टिंग के दो साल थे हमने इंडस्ट्रीज को दिए, बिकॉज अपने पास खुद के कुछ इंडस्ट्रीज नहीं थे. So that part was given to industries, if I'm not wrong. And then came 1961. This is the booming part of the Indian nation. So 1961 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अपना एग्रेरियन सेक्टर वाज ऑन बूम. इतना बड़ा कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्चुअल में स्टार्ट हुआ 1961 में, और 1966-67 तक अच्छा खासा ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ 3-4 स्टेट्स में अच्छी तरह से. और जो अभी भी वही स्टेट्स है जो हमें खाना देते हैं, और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू पंजाब एंड हरियाणा, व्हेनेवर these guys have to show पंजाब, वो लोग पहले खेती दिखाते, राइट. सो वो अच्छा हुआ, और तभी पॉपुलेशन बूम हुआ. And that is why it is called as the population explosion वाला phase. यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत रोल प्ले करती है. जैसे मैंने पहले बोला कि अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो वेलबींग होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हेल्थ मेजर्स, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी, एंड मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो डेथ रेट कम होगा तो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. एंड द ग्रोथ यू हैव सीन इन द लास्ट चार्ट, it was around 23 to 24%, right? So ये वाला पार्ट था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला. और 1982-83 में समवेयर संजय गांधी बॉट दिस थिंग, हमारे दो वाला, एंड ही स्टार्टेड कैस्ट्रेशन ऑफ मेनी ऑफ द इंडियन मेल्स.
1981 से लेकर आज तक, सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सो यू कैन सी इन दिस टेबल के पॉपुलेशन बढ़ रहा है 24, then 23, 21 and 17. So we are rising. It is not negative, but we are rising at a decreasing rate. इसका मतलब समझ रहा है, मतलब हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट हम पहले से कम बढ़ रहे हैं. सो दैट मीन्स वी हैव कंट्रोल्ड समवेयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. नहीं तो बहुत ज्यादा होता था. फिर भी वी आर द सेकंड मोस्ट populous country in the world, and we have managed to control it to a good level, I think so. Because बहुत सारे government जो politicians है especially, they don't get the right to fight elections, I guess, if they have more than 2 children, I guess, if I'm not wrong. So these were the facilities which were cut down for population. We know our neighboring country China, how that country has curbed population growth. We all know, right? कैसे उन्होंने Yes, कंट्रोल sir. किया अपना पॉपुलेशन. बहुत ट्रिगरस. उतना तो बुरे नहीं है हम. कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. क्या है इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कौन कौन है इंडिया के पॉपुलेशन में. सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. सो सदर्न स्टेट शोड अ नॉट मोर देन 20% वाला राइज. सो यहाँ पे जो सदर्न स्टेट्स है, जो मैंने पहले डिस्कस किया, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, देन तमिलनाडु, उन्होंने लेस देन 20% ग्रोथ दिखाया. दैट मीन्स द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी मच लेस. इनफैक्ट केरला का जो ग्रोथ था दैट वाज लेस देन 10%. सो केरला ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया, एंड बाय दैट you can see that Kerala is one of the best states till date. Take it on the health grounds, take it on gender equality, sex ratio वहाँ का बहुत अच्छा है. Then the literacy rate is very high. So you can see that population controlling has played a very well role. As in जो उन्होंने किया population control has brought them actually good result. So it is not कि population control करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा. We can see a live example of Kerala. Kerala is one of the best states which has controlled it very well, population, and controlled many things. Even the HNI, HDI, Human Development Index में भी बहुत अच्छा ये करता है वो. Okay? जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन योर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्होंने ग्रोथ रेट 20 से 25% के आसपास रखा. मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, एंड इसके वजह से द इंडियन पॉपुलेशन कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म. मतलब कोई कोई जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई कोई जगह पर पॉपुलेशन कम है. सो इंडियन पॉपुलेशन को 3 अलग अलग पैरामीटर्स में ये किया गया है. एक है रूरल अर्बन पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रिलीजियस बेसिस पे. सो कैन एनीवन टेल मी कि इंडिया का कितना प्रतिशत जनता पॉपुलेशन स्टेज इन विलेजेस रफली? एनीवन? क्या लगता है? गांधी जी एक हमेशा लाइन बोलते थे. Sir, please repeat. What percentage of Indian population stays in rural areas? स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, I guess. साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी हो, ये तो बात सब लोगों को पढ़नी चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं. एनी आइडिया? कोई रफ नंबर दे दो. 65%. कितना? 70%. 65%. 70%. ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं. अभी कम हुआ रहेगा शायद, बट 2011 सेंसस के हिसाब से 69 point something. So roughly, approximately 70% of the population stays in rural areas. Can you imagine that?
अगर मार्केटिंग स्टूडेंट्स हो तो मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो देखना कि 70% भारत आज भी गांव में रहता है. दैट इज द मोस्ट अनटैप्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इनको कभी हमने कंसिडर ही नहीं किया है. गांधी जी ऑलवेज सेड दिस थिंग, असली भारत गांवों में रहता है. ओके, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज सी द पॉलिटिशियंस वेयरिंग इंडियन अटायर. Hardly you will find any politician who is wearing, and no politician wears western attire. कभी नोटिस किया है ये? सूट पहन के भी आ सकते हैं, नहीं आते वो लोग. क्यों? जबकि मोदी जब बाहर जाते हैं ही वेयर्स गुड. अभी तो इंडियन अटायर ही पहन के जाते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आर इंडियन पार्लियामेंट वेयर इंडियन अटायर. क्यों ऐसे? बिकॉज दे रिप्रेजेंट देयर विलेजेस. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. सो रूरल अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. इसका ये मतलब है कि हमारा इंडिया डेवलप नहीं हुआ? नहीं, हम डेवलप करना ही नहीं चाहते या करना ही नहीं देना है. पता नहीं, मेनी रीजंस. कोई stringent है. So if you go to villages, the people don't want to change. They are happy with their slow life, right? So India has around 6,40,867 villages according to 2011 census. 6 लाख गांव है अपने. 6 लाख गांव के 6 लाख पंचायत. Imagine this. क्या डिसेंट्रलाइजेशन है अपने इंडिया में. Power is given to the gram panchayats. Power flows from the districts, from the villages to the center. बहुत role play करता है, and that is why you would see that many of the governments bringing schemes for villages. States के लिए बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, right? Because 70% of the people are still in the villages. तो हमारे जो प्रोग्राम बनते हैं तो हमेशा हम जब भी बात करते हैं, हर एक गवर्नमेंट बात करती है कि हमेशा वो गरीब और किसानों की बात करती है, राइट? दिस गवर्नमेंट हैज आल्सो बॉट अबाउट द किसान, बट द किसान आर नॉट लाइकिंग इट. दैट इज अनदर स्टोरी. ओके, बट दे हैव बॉट रिफॉर्म्स. द रिफॉर्म्स आर रियली गुड, बट द पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन देम. They think it is manipulative and they have their own theories for it, right? Which is correct, I feel. So India has 6 lakh villages, out of which 5 lakhs are inhabited. So 93% of the people are staying there. बाकी के छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको भी villages का term मिलता नहीं है. But there are villages. There are like 6 lakh villages in India. Then population distribution is not uniform, as we have seen this. कि कोई जगह पर कोई villages में population ज़्यादा है, तो कोई villages में population कम है. So in the book of NCERT they have written that Bihar and Sikkim have a very high percentage of the rural population. तो इसका मतलब ऐसा है कि बिहार बहुत पिछड़ा वाला एरिया है. अगर सिक्किम की बात देखोगे तो सिक्किम is the only state in India which grows organic vegetables, and it is very very good in terms. If we compare it with other states. सिक्किम का अगर क्लीनलीनेस देखोगे, कोई अगर कभी गैंगटॉक गया है तो देखना वो, मतलब there are my uncle visited Gangtok, so he was telling it is way cleaner than Darjeeling. Darjeeling falls in West Bengal, but बाजू में ही उससे कुछ ही 4-5 घंटों में गैंगटॉक आता है, and that is very much cleaner. So सिक्किम भले ही ज्यादा रूरल पॉपुलेशन उसका पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है, इट इज वेरी वेल मेंटेन. सो ऑर्गेनिक खेती करने वाला सबसे पहला और एकमात्र शहर है वो, राइट? ऑर्गेनिक फूड इज द फ्यूचर. अगर हम ऑर्गेनिक खेती को और बढ़ावा देंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स टू, एज इन पॉपुलेशन अपना ज्यादा है तो वी नीड हाई यील्ड क्रॉप्स. और ऑर्गेनिक में इतना हाई यील्ड नहीं आता है, बट देयर आर व्हाट यू कॉल साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ाया जाए. देन गोवा एंड महाराष्ट्र हैव अ वेरी लिटिल रूरल पॉपुलेशन. व्हाट यू मीन बाय लिटिल? व्हिच इज द मोस्ट अर्बन स्टेट इन इंडिया? एनीवन?
मोस्ट अर्बन स्टेट इन इंडिया। पता है किसी को? क्या पूछ रहे हैं सर? मतलब सबसे कम गांव कहाँ पे है, या फिर सबसे ज्यादा अर्बन एरिया कौन से स्टेट में? एनीवन? कम ऑन, दिस इज नॉट Tamil Nadu. तमिलनाडु? आर यू श्योर? Yes, sir. हाँ, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वी कैन नॉट टर्म इट अ स्टेट। अरविंद केजरीवाल बहुत सालों से बोल रहे हैं बेचारे कि हमें स्टेट वोट दो। इट इज नॉट अ स्टेट। It's even temple, sir. 48% in हाँ हाँ हाँ, 48% urban अर्बन। area. गूगल गूगल किया अभी? Yes, sir. Okay. Maharashtra, I guess, was the most urbanized state. I had read it. उसका 60% urban है, if I'm not wrong. But now, if the figures have changed, I am not sure about it. Sir, first of But all, Mumbai, sir. First of all, Mumbai, sir. Mumbai is a city, right? So I'm talking about the whole state of Maharashtra. It is more urbanized. But now the statistics would have changed, I guess. But when Nagpur. I had read it, so Maharashtra was always the most urbanized state in India. Then we have Goa also. कभी गोवा जाओ, गांव लगेगा ही नहीं, उधर के गांव लगते ही नहीं है। इवन तमिलनाडु, चेन्नई और उसका पेरिफेरल एरिया, घर इतने अच्छी तरह से बनाए गए हैं ना कि मतलब इट इज रियली वर्थ सीइंग कि अच्छा ये गांव है, बट द हाउसेस आर ओवर देयर आर पक्का हाउसेस, हट्स नहीं है वहां पे। सो दैट कैटेगराइजेस देम इनटू ये व्हाट यू कॉल अर्बन पॉपुलेशन। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब इंडियन पॉपुलेशन को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज फॉर्म्ड, कौन सा था फर्स्ट स्टेट, किसी को पता है? फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन, किसी को पता है ये चीज? कौन बनेगा करोड़पति? 6,40,000 का सवाल, कम से कम, या कब नसीब अच्छा हुआ तो 12,50,000 में भी। फर्स्ट इंडियन स्टेट, ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। Andhra Pradesh. Right, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was the first state to be formed on linguistic basis. और नसीब देखो आज वापस उसका टूट गया बेचारा, तेलंगाना बन गया। Yes. तो फिर अभी 12,50,000 देने वाले हो आप? ऑप्शन नहीं देता था मैं। मैं कर रही थी कि अभी पासबुक का नंबर दे ही दो। ओके, तो सवाल वैसा रहेगा। तो वो तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल था ना, मेरा सवाल रहेगा तो उसका आंसर देना। तेलंगाना है ना, 2014 में ये हो चुका है, हमने सेपरेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो चुका है तेलंगाना में। जो जिसका कल्चर, इसका जो आंध्र कल्चर अलग है, तेलंगाना कल्चर अलग है, बोल रहे थे वो लोग स्टेट के साथ। राइट, इट डिफर्स रे। कल्चर का बात करेगा ना तू, सो देयर इज वन स्पिरिचुअल गुरु सेज हर 50 किलोमीटर पे, दिस लाइन इज वेरी नाइस, हर 50 किलोमीटर पे भगवान बदलते हैं, कल्चर बदलता है, कपड़े बदलते हैं इंडिया में। दैट इज व्हाई ब्रिटिश फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज दिस पीपल। उनको समझ में ही नहीं आया। इनफैक्ट अभी भी दैट इज व्हाई द लॉ इज नॉट as strong as it is in the cities. गांव में अपना रूल अलग चलता है, ओके? गांव का अपना कानून होता है। सर इन आंध्र या अमरावती ना, that's capital अमरावती, right? या अमरावती, they are building अमरावती as a next capital. तो डिबेटेबल है, अमरावती को बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, बट वाइजैक भी है। So they have not finalized. अमरावती को वो लोग ने एग्रेसिवली बनाना चालू किया है। मतलब द प्रोजेक्ट इज वेरी नाइस। मतलब ऐसा सिटी शायद ही इंडिया और 20 साल में देखेगा कोई डेवलप होते हुए। अगर वो लोग ने अमरावती को डेवलप किया ना,
So Amravati is a very good area for as part of administration. वो लोग ने वाइजैक को इसके लिए रखना चाहिए बिजनेस के लिए. So that would be like जैसा दो कैपिटल जैसा मुंबई महाराष्ट्र जैसा है, मुंबई कोस्टल एरिया में और नागपुर वैसे, तो वैसे ही उन्होंने अमरावती को भी रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और वाइजैक को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. आंध्रा दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट. सर या आंध्र प्रदेश तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले था ना? आंध्र प्रदेश पहले था नहीं, पहले सब ये था रे, किंगडम्स थे. हैदराबाद था पहले, याद है? हाँ मुझे लगता है मैंने कहा तो भी पढ़ा है. पोस्ट इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश था लिंग्विस्टिक बेस्ड ऑन एंड देन आई थिंक बॉम्बे. मुझे नहीं इतना नहीं, यू सेड कि आंध्र प्रदेश वाज बिफोर इंडिपेंडेंस. नो, आंध्र प्रदेश उससे पहले हैदराबाद था, हैदराबाद प्रोविंस करके था. तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का मेजॉरिटी ऑफ द एरिया केम अंडर हैदराबाद किंगडम ऑफ हैदराबाद. ओके, तो जब वो प्रिंसली स्टेट्स चले गए, अपने सरदार पटेल जी ने ये किया, उसके बाद एक सेकेंड ना, माय ब्रदर इज कॉलिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट. How to mute this? हेलो हेलो, अरे लेक्चर घेतोय, 5 मिनिटं थांबता नाही येत का? हेलो, सॉरी गाइस. नो इश्यू. ओके, उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस को तोड़ा गया 1960s में. वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही बाद में ब्रेक हुआ. सो रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लिंग्विस्टिक. सो ये एक सर्वे किया गया था, ग्रेयरसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 में हुआ था. सो देयर आर लाइक 179 लैंग्वेजेस तभी एंड 554 डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स और लैंग्वेज का फर्क पता है ना? पता है नहीं पता है? जल्दी बहुत कम टाइम है अपने पास. नहीं पता? ओके, सो लैंग्वेजेस आर रिटन एंड स्पोकन whereas dialects are only spoken. Okay, so तुलु अगर कोई कर्नाटका से है तो तुलु इज अ डायलेक्ट, मतलब उसको मैं लैंग्वेज नहीं बोल सकता बिकॉज तुलु इज नॉट रिटन, whereas कन्नड़ा इज अ लैंग्वेज. Okay, so you can say Tulu a language, but it doesn't have any script. So there are many languages which don't have script. They are termed as dialects. Languages का अपना grammar होता है. So today there are about 22 scheduled languages. पढ़ लेना ये कौन से scheduled languages है अपने इंडिया के, among which Hindi has the highest percentage because बहुत सारे states में हिंदी बोला जाता है. Then the smallest percentage comprises of Sanskrit, Bodo and Manipuri. किसी को पता है बोडो कहाँ पे है? मणिपुरी तो ऑब्वियसली मणिपुर में रहेगा. बोडो पता है? बोडो जल्दी एनीवन? ये लोग अपना अलग लैंड डिमांड कर रहे हैं, जैसा तेलंगाना कैसे किया वैसा बोडो लैंड आसाम में. पढ़ लेना उसके बारे में, बोडोस. So this is the classification of modern Indian languages. Austroasiatic, Austronesian, बहुत अलग अलग नाम है. Tibeto Myanmari, Samanese, Chinese, Indo-Aryan. So majority अपना ये जो languages है ऊपर वाले, they are very less. You can see 1.38%, 20%. तो ये Austroasiatic क्या बोल रहे हैं? ये सारे languages families है. Okay, Austric languages, Dravidian family, then Sino-Tibetan. So Austric languages बहुत सारे जो अपना सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, गोंडिया करके है, गढ़चिरौली है, देन छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. मेघालय, निकोबार आइलैंड्स है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, आसाम, ओडिया, बट मेजॉरिटी ऑफ द गोंडिया लैंग्वेज कम्स अंडर दिस कैटेगरी. देन वी हैव द्राविडियन लैंग्वेजेस, जो साउदर्न इंडिया है अपना पूरा, कर्नाटका और वो सब जो संगम लिटरेचर से भाषा निकली है उसे द्राविडियन लैंग्वेज
बोला जाता है. देन देर इज सिनो टिबेटियन जो अरुणाचल प्रदेश एंड सेवन सिस्टर्स में बोली जाती है, बहुत सारा लद्दाख में बोली जाती है. दैट इज सिनो टिबेटियन फैमिली. ये चार्ट देख लेना बाद में. एंड देन वी हैव द इंडो यूरोपियन. तो मेजोरिटी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेजेस, जिसको अपन संस्कृत को माँ बोलते हैं, बट एक्चुअली संस्कृत से पहले भी जिसको टर्म जिस फैमिली में आता है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है. सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जिसको इंडो आर्यन लैंग्वेजेस भी बोला जाता है. सो इंडो आर्यन इज मराठी, देन हिंदी, पंजाबी, बंगाली. दीज आर ऑल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस. सो इन कैटेगरीज के बेसिस पर ही स्टेट्स बनते गए बाद में. बट दिस इज वेरी मच क्लियर कि ऐसा नहीं है कि ये स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका की अगर बात कर लूं मैं, तो कर्नाटका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, राइट, सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका और स्टिल स्पीक्स मराठी, राइट. इफ यू नो, बहुत महाराष्ट्रियंस को पता होगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ. सो दैट वाज बेलगाव वाला पार्ट है, दे आर ऑफ मराठी स्पीकिंग प्रोविंस, बट इट वाज नॉट गिवन टू महाराष्ट्र स्टेट. Whereas Vidarbha wala part, which is mostly not speaking Marathi, they speak mostly Hindi. So जो भी नागपुर से हैं, so they speak very less Marathi. They speak Marathi, but they speak not that much Marathi, rather than the western part of Maharashtra. So Vidarbha is also asking for a separate state. Okay, so this was on the basis of linguistic. Then we have religious, the famous religion के basis पर. So religion is one of the most dominant forces affecting the cultural and political life of majority of the Indians. क्यों religious basis पे इसका composition किया जाता है गठन? Because ये अपने को आइडिया देता है कि कौन सा ये है, कौन से पोजीशन, मतलब कौन से स्टेट में या फिर कौन से एरिया में कौन सी मेजोरिटी रह रही है. सो यू विल सी कि अपने कास्ट वाले, मतलब अपने रिलीजन वाले ही साथ में रहते हैं. It is very rare, very very rare, except for Gokuldham Society, which is in Goregaon. Do you know Gokuldham Society? Yes, sir. हाँ, right. तो Gokuldham Society में सब लोग रहते हैं, but ऐसा नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहते, right? You must have realized कि you will see कि सारे जैन और गुजराती रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में दूसरा कोई नहीं रहेगा. सिर्फ मुस्लिम रह रहे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हैं. Hardly you will find any other guy. अगर कोई ब्राह्मण्स रह रहे हैं, महाराष्ट्रियंस रह रहे हैं, I have a whole colony besides my area. Same here, sir. Same where? In Sion we have Jain society जहाँ पे सारे जैन ही रहते हैं. सारे जैन रहते हैं. So religious composition plays a very much, because we have that culture thing, similarity. That is why people stay together. It is not wrong. So I stay in a Kolivada. So there are majority of the people are fishermen from my area. Okay, so Muslim being the largest religious minority, like 17%, अभी तो 20% पे पहुंच चुका है. जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुस्लिम्स है, certain districts of West Bengal है, then केरला है, then उत्तर प्रदेश के बहुत सारे districts में मुस्लिम्स रहते हैं. In fact, Urdu is the official language of Uttar Pradesh. If you guys know or don't know, Urdu is the official language of Uttar Pradesh after Hindi. Okay. Sir, this is Aligarh University, Aligarh wala area. Then there are many. Yes, sir. Then we have the Christian population. It is distributed in whole rural parts of India. Christians rural part में, तो जो अपना सेवन सिस्टर्स है ना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वो सारा रूरल एरियाज में क्रिश्चियनिटी फैला हुआ है. देन गोवा में, केरला में एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. देन वी हैव सिख स्टेइंग इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र का बहुत सारा नांदेड़ वाला एरिया है, वहाँ पे सिख्स रहते हैं बहुत. नांदेड़ में बहुत सारे सिख कम्युनिटी रहती है, बिकॉज गुरु तेग बहादुर जी का रेस्टिंग प्लेस वहाँ पे. देन वी हैव जैन्स, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरास्ट्रियंस इन स्मॉल रिलीजियस ग्रुप. सो जस्ट टेकिंग अ लुक एट दिस 2011 सेंसस, 80% हिंदू है. और जैसे कि अपना बहुत सारा बीजेपी या आरएसएस वाले हिंदू खतरे में है, तो आई समटाइम्स डाउट कि 80% लोग होने के बाद भी हम खतरे में हैं, तो फिर बाकी लोग को क्या बोला जाए? बाकी लोग तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हम खतरे में है तो. ओके, सो मुस्लिम्स constitute around 14%, which has increased a lot to 20%. But still, it is analyzed in 2050. The Muslims of India
will overtake the Muslims in Indonesia, if I'm not wrong. So Indonesia is another populous Muslim country. तो ये ओवरटेक कर लेंगे ऐसा बोल रहे हैं, बट उससे क्या हिंदूज पर अफेक्ट होगा? कुछ नहीं. हिंदूज विल बी राइजिंग मोर. सो इट इज नॉट रिलीजन विच विल डिवाइड इंडिया, नेवर. Christians, matlab religion is never a problem for other religion, will never be a problem for Hindus. Then Christians are 2.3%, 6 1.7, Buddhists 0.7. This is very much surprising, huh? मतलब बुद्धिस्ट जो पूरे साउथ एशिया और एशियन कंट्रीज में फैला बुद्धिज्म, और इंडिया में 0.7% है. दिस इज आयरनी. Then Jains constitute about 0.4% and other religions. So I'll keep this line open for another 5 minutes. Any question, guys? Sir, I have one question, sir. Yeah. Sir, in Christian population, many other states are there, sir, like Kerala and Tamil Nadu. Mainly in Tamil Nadu, in districts like Kanyakumari and Rameshwaram. Huh. There are 80% are Christian populations are there, sir. Right. And So and in Kanyakumari also there are also same many of them, sir. Many of them are there, sir. Like populations. There's a rate of 2011 census rate. yeah, many Christian. If you go to Wellington, Yes, sir. Yes, sir. I know. so Wellington is one of the important and the prominent place Permanent where place, the Eric Bishop, I guess, Eric Bishop ही बोलते हैं Christianity में, if I am wrong to any of my Christian students. तो वहाँ पे मतलब इंडिया का क्रिश्चियन हेड वहाँ पे बैठता है वेलिंगटन चर्च में, राइट? हाँ, sir. So he represents India at Vatican City. Hmm. तो जब भी क्रिश्चियन मीट होती है, पोप बुलाते हैं, तो these people have to go. Yes, sir. It is it has I guess one of the largest chapels in Asia. I'm not wrong. मैंने देखा था बहुत पहले डॉक्यूमेंट्री. तो वेलिंगटन चर्च, it is worth seeing. Yes, sir. Sir, जरा उधर में एक वहाँ पे सुनामी आया था पहले का. हाँ, राइट. सुन, वो आप डॉक्यूमेंट्री देखे रहेंगे आप उसमें. डॉक्यूमेंट्री में नहीं देखा था मैं अभी रिसेंटली कुछ देख रहा था. I don't remember, but I had seen this part. Fine, sir. Any more questions, guys? No, sir. Okay, shall I close the line? किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है ना, या फिर मैं क्लोज करते करते कोई ना कोई कुछ बोल देता है और फिर मेरे को ऐसा गिल्ट रहता है, यार मैंने क्लोज कर दिया, कोई कुछ बोल रहा था. ऐसा कुछ है सर. Nothing, sir. Okay, चलो, bye guys, I'll take your leave. Bye bye. Bye, sir. Thank Good you, sir. night. Yes, sir. Take care. Good night, Yeah. sir. Bye Bye, bye. sir. Stay safe. Yeah. Thank you, sir. You guys also. चलो, bye bye. Bye bye.